the state is uh, increasingly diminishing its role, and market is increasingly growing its role. So there is a limited role for the state in economic matters, and this means market will be unregulated. There will be no regulation of the market by the state. So this is called in economics and in political science as a free market economy or free market state. That means free market is the guiding principle of the state market policies or economic policies, where it does mean that regionally all the Latin American countries will integrate with each other economically or in terms of market integration, economic integration. And state will not interfere in the growth of the market, in the dominance of the market, in the hegemony of the market. It will let the market free to decide its own course of action under the belief that free market will have more competition, the consumers will get the benefit, and increasingly the state will have a reduced role in the organization of the market. So there are two aspects. One is state will have a limited role in economic affairs. Second is it will not interfere in the organization of the market. So the economic power will go to the market. This is called unregulated market or free market. So it is understood that state will have no role, but actually state will have a role in implementing the neoliberal policies. That means it will facilitate the dominance of the market. This is number one. Number two is the markets will be reorganized, and the relation between state and society will be institutional transformation. That means state will no more be strong than the market. Market will be strong and market institutions will be strong. This happened in America, Latin America. Third is when there will be no regulation by the state in economic powers, then it is customary that there will be capital states, big business, private business, they will have more role, and the government will act as a corporate system, or the governance will be a corporate sector. So formal institutions will be informal. Then, interestingly, this unregulated market strategy will also talk of social security adjust, like that of welfare state. But this will not actually happen. That did not happen in Latin America. Then, fifthly, the unregulated market will have more business interest. It will bring more international capital or the foreign direct investments, and they will have more interference in the politics of Latin America. They will develop a economic interest that will transfer into a political interest. If any government or political party or political force will oppose the growth of the market, then they will oppose also that political force or do not want the continuance of that political force in that particular Latin American country. So this neoliberal model of development will have the decline of the political influence of the powers or forces who do not want a market-driven economy or market-driven state practically. So obviously, sixth point is market will practice exclusionary policy. It will not be inclusive. It will not interested in job growth. It will not have interest in social security schemes. So it will only be interested in profit, in surplus value, whether it will create social inequality or economic inequality is not the concern of the market. So what happened during this period? Market became powerful, state became less powerful. The marginalized population, the working population, the poor population, they are exploited, they are dominated by the economic forces which are against their interest. So there is a combination of market, state and society. Okay. So earlier state was controlling the market, regulating the market, the economic affairs, social security, welfare of the people, development of the state were on the prior agenda. So when the market became dominant, I explained these 5 points or 6 points. When market became dominant, it has its own politics of market.
So the political forces, those who supported the growth of the market, the power of the market, the dominance of the market, they continued politically, and those who political powers who oppose that market and these political forces combinedly oppose these political forces. There is a political instability, you can say, and there is a growth of economic inequality, poverty, etc., etc. So market-driven economy has been disastrous for Latin American countries. One journal, you can say, Social Panorama of Latin America, 2001, it made an annual study where it showed that 17 Latin American countries by the United Nations Economic Commission Latin America and Caribbean, that is ECLAC, has estimated at the end of the 90s, 90 ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗକୁ 43.8% of the Latin Americans are living in poverty. 2001 ବେଳକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟଡି ଆନୁଆଲ ଷ୍ଟଡି କହିଲା ଯେ 17ଟା ଲାଟିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 43 ଭାଗ ଲୋକ, 43.8 ମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ 44 ଭାଗ ଲୋକ, 0.5% ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭିତରେ 18.5 almost 20% are very poor. So in 1999, below the poverty line people were more than in the 80s. 80 ଦଶକରେ ଯେତିକି ଗରିବ ଲୋକ ଥିଲେ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବଢିଗଲା. 99 ରେ 35% ଲୋକ ବେସିକ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଲ୍ୟାକ୍ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ମାନବ ସମ୍ବଳ ନଥିଲା. So this ECL report, Economic Commission of Latin America by the United Nations, so saw the economic distribution remains unequal throughout Latin America. ସମଗ୍ର ଲାଟିନ ଆମେରିକାରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅସମାନତା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ମାନବ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କଥା ରିପୋର୍ଟରେ ଆସିଗଲା ECL ରେ. ଯୋଉ ECL ସେ କହିଲା ଯେ ବେସିକ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବା ବେସିକ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଲାଟିନ ଆମେରିକାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, because of this market economy. So there is no scope for the state or state intervention which was in the welfare state. ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର ଯେମିତି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ social security net ଭିତରେ ନାହାନ୍ତି, they are to remain. So that is why the major reason for this debacle, economic debacle or inequality, is market-driven economy or neoliberal economy or economy of globalization. But the political parties, they were declined. So though they made electoral promises that they will correct it, but they could not correct it because of the economic model or economic paradigm that practice in almost all Latin American countries except 2, 3, or 4. Okay. So market-oriented restructuring has allowed the government and the corporate sector to facilitate adjustment of the domestic economy and its integration with the global market forces. So global market forces through multinational corporations dominated the Latin American economy. So before independence, same thing happened. After independence, same thing happened. This is a horrible picture that emerged from Latin America during the 90s, during 2000, and after 2000. That is called liberalization economy. The state of crisis has become permanent in the region because of neoliberalism has opened doors for aggrandizement. Same neo-colonialism came in a new form. Earlier it was colonialism, now it is new colonialism under neoliberalization program. So there is huge corruption, huge political crisis, instability as happened in Argentina, in Peru and other Latin American countries. Okay. So what happened actually? Actually, there was no democracy or less democracy. There is a crisis in democracy. There is crisis in economy. So if we summarize this chapter, what you will find that reduction of the role of the state and the growing role of the market, that is the contemporary agenda of the neoliberal global political forces, global capital forces who dominated the Latin American society, Latin American state and Latin American economy. এটা କଣ ହେଲା ନା ଜଗତୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଲାଟିନ ଆମେରିକାରେ ଯେତେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦିଟା ତିନିଟା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ କମିଗଲା, ଭୂମିକା କମିଗଲା, ପ୍ରଭାବ କମିଗଲା, ବଜାରର ପ୍ରଭାବ ବଢିଲା। ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ଯୋଉ ବଜାର, ବିଶେଷ କରିକି ଆମେରିକାର ଯୋଉ ମଲ୍ଟିନେସନାଲ କର୍ପୋରେସନ ତାଙ୍କ ସହିତ ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଚିପ୍ ଲେବର ୟାକୁ ଶୋଷଣ କରିକି ଲାଟିନ ଆମେରିକାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ପୁରା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଲେ, ଯୋଉଥିରେ ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ବଢିଗଲା, ଅସମାନତା ବଢିଗଲା,
दारिद्र बढ़ीगला जहाँ आम रिपोर्ट देखले एवं तापरे दारिद्र बढ़ीगला परे लोकंकर मौलिक जो कौन तो कह मौलिक आवश्यकता पूरण हो पारला ना। सो आम नेक्स्ट चैप्टर जीवा इट हम पढ़ले स्टेट मार्केट सोसाइटी हाउ मार्केट डोमिनेटेड द स्टेट एज वेल द सोसाइटी हाउ इट ब्रॉट economic disastrous policies, economically disastrous policies in terms of inequality, exploitation, and lack of basic resources for the majority of the population. संख्याधिक लोक सर्वाधिक लोक बा शतकड़ा 50 भाग अधिक लोक दारिद्र्य सीमा रेखा तले रहिले मौलिक आवश्यकता पूरण है एवं politically it became disastrous for democracy. Wait a second. Hello. हेलो कौन करे मोर दांतरा तो पेन हो ना मोर अच्छा ठीक है so then next chapter there is populist movements and regimes जन आंदोलन है लोकप्रिय आंदोलन है सब विभिन्न लैटिन अमेरिकार विभिन्न राष्ट्र रे अर्जेंटीना रे ब्राजिल ले जमिति पेरोन ऑफ अर्जेंटीना एंड vargas of Brazil पेरोन PERON and vargas 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 okay 20th century रे अर्जेंटीना जे पेरोन and Getulio Vargas of Brazil संक्षिप्त कह गले they both changed the politics of the countries from being conservative and elitist dominated by landowners and exporter of primary to generally describe oligarchy to the one that became mass based under the leaders of urban middle class elements. तो जन आंदोलन जो दीटा स्टेट ब्राजिल रे अर्जेंटीना रे पूरा राजनीतिर बा राष्ट्र चरित्र बदली गला गोटे स्टेट थिला अर्जेंटीना रे एवं ब्राजिल रे कोन ना जो माने लैंडलॉर्ड जो माने आमे ओलिगार्की बोली कहूचु जो माने जमींदार थे अर्जेंटीना रे एवं ब्राजिल रे जो माने एक्सपोर्टर रप्तानकारी माने मौलिक पदार्थ को रप्तानी करती यूरोप अमेरिका मार्केट को से माने शासन करथिले वर्तमान जो माने अर्बन मिडिल क्लास सहरांचल मध्य वित्त जो माने एवं जो मास बेस जो मानकर अछि से माने राजनीतिर केंद्रबिंदु को आसी गले से माने लोक मान को मोबिलाइज कले जे जातीयतावाद आसु एवं जो एंटी नेशनल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जहाँ देश रप्तानी कर दियो बाहर को ठेली दियो आमे गोटे लिमिटेड सेक्शन बा लिमिटेड श्रेणी लिमिटेड लोक शक्तिशाली हो अर्थनैतिक भाव में राजनैतिक भाव में सामाजिक भाव में अर्जेंटीना रे ब्राजिल ले अन्य माने शोषित होंतु एइटके माने चैलेंज करे दियो हला सो से माने क्षमता को आसीबा पई लोक मान को मोबिलाइज करे पावर को केमिति आसीबे ना लोक माध्यम रे लोक आंदोलन माध्यम रे लोकप्रियता माध्यम रे किसी जगह इलेक्टोरल मूवमेंट है माने भोट बाटर आसिले आउ किसी वैप्लविक बाटर विप्लव माध्यम आसिले तेणु मेन यार सेंटर फोकस है पॉपुलर पार्टिसिपेशन लोक मैंने अंशग्रहण करेंगे लीडरशिप जो जमींदार मान हाथ न रही बड़ बड़ पुंजीपति हाथ न रही शिक्षित बुद्धिजीवी जोटा सहरांचल हाथ रहा से नेतृत्व नेले एवं जनसाधारण समर्थन करे बहु जनसाधारण साधारण लोक समर्थन करे तेणु जो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन बाहर आनी जो शिल्पीकरण करवा शिल्पायन करवा जो प्रक्रिया गत काली हम पढ़ते से मैंने चैलेंज करें सो पेरोन आसीगले अर्जेंटीना शासन रे 46 55 पुणी 73 टिल हिज डेथ इन 74 पेरोन जो क्षमता को आसिले इटा हो जो पॉलिटिकल लाइन ऑर्गेनाइज द अर्बन मिडिल क्लास एंड वर्किंग मासेस तार्थ श्रमिक श्रेणी एवं सहरांचल मध्यवित्त श्रेणी यांकर जो उत्थान हैला एवं अर्जेंटीना पॉलिटिक्स रे प्रवेश हैला तार बेस्ट एग्जांपल होचंती वर्ल्ड जने पेरोन खाली अर्जेंटीना भीतर सीमित नहीं वर्ल्ड तुम देख पारिबो जे पेरोन सो पेरोन प्रथम गोटे मिलिटरी जुंतारे थे मेंबर तापर 43 कु जोटा सामरिक विद्रोह है से आसिले तापर जो कंजर्वेटिव रेजिम माने रक्षणशील जो सरकार लोक मानकर जो जमींदार मानकर स्वार्थता को रक्षा करथला से मिनिस्टर थे मिनिस्टर लेवल से देखि पड़ुଥିଲେ जे ऑर्गेनाइज्ड लेवल जोटा संगठित श्रमिक तांकर भूमिकाटा कोन ही परिबो तेणु जो प्रेसिडेंसी से जीतले 1946 रे से वर्किंग क्लास समर्थन एवं अर्बन मिडिल क्लास समर्थन जीतले ताको हम अर्बन पुअर बोली कहउचंती बा दरमा पाउथवा सहरांचल मध्यवित्त श्रेणी चाकरी जो मान करछन एवं तांको जाय परिबो जे नेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट बा जातीयतावादी
शिल्पपति जो मैंने आस्ते आस्ते नुआ नुआ जमन होता कारण से सब राज्य शिल्पपति माने कौन बाहर विदेशी प्रथम कॉलोनियल पीरियड स्पेन और पोर्तुगाल ता परवर्ती पीरियड मेनली अमेरिका तेणु ये जो मध्यवित्त सहरांचल जो शिक्षित बुद्धिजीवी से माने प्लस वर्किंग क्लास ये दी जन को धरिकी संगठित करके से आसे जब आम कहले जे पेरोनिज्म पेरोन जो आदर्श पेरोनवाद तर कौन से गुड़ा पेरोनवाद लक्षण है अर्जेंटीना रे हाईली चारिस्मेटिक लीडर प्रथम चरित्र है हिज ए चारिस्मेटिक लीडर आकर्षणीय नेतृत्व तांका भीतर अथॉरिटेरियनिज्म थिला ता सहित वर्किंग क्लास प्रति समर्थन अर्बन पुअर तांका सपोर्टर माने गोटे रिवोल्यूशनरी अपील वैप्लविक आवेदन जोटा से ना कहला जस्टिशियलिस्ट पार्टी बा पेरोनिस्ता पार्टी तांका दलटा हला पेरोनिस्ता पार्टी बा न्याय पय लड़ुथुवा जस्टिसिटा पार्टी तांका नार से पार्टा हेगला लोक मान ताको परिचित कले पेरोनिस्ट पार्टी तापरे तार अथॉरिटेरियन लीडरशिप रहला से विरोधी दल के समर्थन देला नहीं विरोधी मान को स्कोप देला नहीं विरोधी मान को माने समालोचना कला बा आक्रमण कला बा स्कोप नथिला सेकंड कैरेक्टर हला जे अर्जेंटीना रो जो पॉपुलिज्म लोकप्रियता बा जन आंदोलन बा लोक मानकर समर्थन एटा मेनली अर्बन एटा ग्रामांचल बेसी हला नहीं सहरांचल बिकॉज इन द urban areas these people who are these people like working class like urban intelligentsia urban middle class so they actually form the major support base of Peron एवं ताकर इकोनॉमिक पॉलिसी से माने बेसी समर्थक हेले एवं बेसी कोन समर्थन जोगाड़ करि पारले बा आंदोलन करि पारले बा नेतृत्व नै पारले कारण होची अर्बन वर्किंग और मिडिल क्लास रो ग्रोथ जेतु अधिक थिला so they became the best these parents party or parents support base third character हला पेरन रो जे इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी जोटा सेवन कले मेनली स्मॉल डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल क्लास को आख्या रखी कले एवं ताकू प्रोटेक्शन देवा पे नीति गुड़िक ग्रहण कले जातीय जोटा पुंजीवादी बा जातीय शिल्पपति तांकू समर्थन कले फॉरेन ये को समर्थन कले दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरन पॉलिटिक्स इन अर्जेंटीना तो अर्जेंटीना रे पेरन को जो राजनीति हला मार्केट इकोनॉमी की चैलेंज कले तार ए गुडी खला मौलिक चरित्र नाउ लेट अस कम टू ब्राजील so in Brazil we have Getulio Vargas who was the president for 13 years from 30 to 43 30 मसीह रु 43 मसीह पर्यंत ब्राजिल राष्ट्रपति रहिले के जेटुलियो वार्गास ये तो पेरन गले अर्जेंटीना बर्तन ब्राजिल के आसीबा तापर गोटे पॉपुलिस्ट कोलिशन कले मेंटो सरकार कले मेंटो कले जो पुणी से राष्ट्रपति हेले 1950 रे तो 30 पर्यंत तांकर गोटे निर्दिष्ट राजनीति थिला ये हला चैलेंजिंग द मोनार्की देन सेकंड पार्ट रे सी रीजनल इंटरेस्ट आंचलिक स्वार्थ रक्षा कले साउदर्न ब्राजिलियन स्टेट ऑफ रियो ग्रेनेडी डी सुल जोटा अर्बन पॉलिटिक्स की जातीय स्तर रे प्रभावित करेला एवं से गोटे डोमिनेट फिगर भाव रे बा प्रभावशाली नेता भाव रे इमर्ज कले कोठी ब्राजिल रे ओके तापर नेक्स्ट 13 इयर्स 30 रु he dominated the national politics by playing according to the rules and norms of Brazilian politics से बारंबार अलाइनमेंट कले रीअलाइनमेंट कले विभिन्न आंचलिक गोष्ठी सहित अर्थनैतिक स्वार्थ सहित अर्बन पॉलिटिक्स सहरांचल बड़ बड़ राजनेता मान सहित गोटे मेंट तैयारी कले बारंबार मेंट तैयारी करिकी आर्म फोर्सेस सपोर्ट रे से पुणी 34 रे राष्ट्रपति हेले एवं मिलिटरी सपोर्ट रे पुणी 38 रे मध्य हेले तेणु तापर से न्यू स्टेट जोटा एस्टाडो नोवो बोली कुआगला 38 से प्रतिष्ठा कले जोटा हला सेंट्रलाइज्ड केंद्रवादी राष्ट्र जहाँ भीतर इकोनॉमिक क्लास इंटरेस्ट स्टेट कंट्रोल रहला पेरन को भलिया सी लैंड ओनर बा कॉफी प्लांटर को चैलेंज कले पेरन जिमिति जमीदार मान को चैलेंज कले ये चैलेंज कले ये कौन कले ना सी गोटे इंडस्ट्रियल शिल्प जो आरंभ कले जो शिल्प को प्रोत्साहन देले अर्बन वर्कर को मध्य राष्ट्र सुरक्षा बा राष्ट्र प्रोत्साहन देले तापरे इकोनॉमी को केमि उद्धार करा जाय परिबो पुनरुद्धार करा जाय ताकू से उद्यम कले एवं तांकर मेनली टू पॉलिटिकल पॉलिसीज हला गोटे हला पैटर्नलिस्टिक सेंट्रल रूल एवं तापर हला रेनफोर्सिंग द डिपेंडेंस ऑफ प्राइवेट इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द स्टेट राष्ट्र जेतु व्यक्तिगत घरोई पुंजी को सहयोग कला से पुंजीपति माने आंको मध्य सहयोग कले तो ये पेरन को बढ़िया नहीं टिके आउ टिके चेंज करके एक कथा कले
ତାପରେ ସେ ନିଜେ ଭାର୍ଗାସ ଯିଏ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହରେଇଲେ, ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ତାପରେ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା ତାକୁ ସେ ଷ୍ଟଡି କଲେ। ପୁଣି ସେ 1950ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ମୋବିଲାଇଜ କଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷ କରିକି ସହରାଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସକୁ ବା ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀକି ପୁଣି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ। ସୋ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମର ଯୋଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଲା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ, ଓଲ୍ଡ ଷ୍ଟାଇଲ ପଲିଟିସିଆନ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ପୁଣି ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଦିଟାଙ୍କ ରେଜିମ୍ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା କୋଉଠି, ପେରନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଭାର୍ଗାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାରେ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲରେ, ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ହେଲା? ସେମାନେ ସେ ଯୋଉ ସମ୍ବଳ ନେଇକି ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ କ୍ଷମତା ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତ ପପୁଲିଷ୍ଟ ରୁଲ ଯୋଉଟା ଆସିଲା ଏଟାର ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜିଂ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିଲା, ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ପଡିଲା। ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକରଣ ହେଲେ, ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ବେଶୀ ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜ ହେଲା। ଲାର୍ଜ ମଲ୍ଟି କ୍ଲାସ ଅର୍ବାନ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ତାଙ୍କର ତିଆରି ହେଲା ଏବଂ ଲୋକପ୍ରିୟ ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ ବା ସମର୍ଥନ ସେଥିରେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ପେରନର ଯୋଉ ଚାରିସମା ସିଏ ଗୋଟେ ବଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସରେ ସେମାନେ ସର୍ଭାଇଭ କରିବାରେ ସହାୟତା କଲା। So these are the two experiences of populist regimes in Brazil and Argentina. ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆଗ୍ରେରିଆନ ପପୁଲିଜମ ମେକ୍ସିକୋ, ଲାଜାରୋ କାର୍ଡେନାସ, ସିଏ ଗୋଟେ ପପୁଲାର, ତାର ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା ଯେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲିବର୍ଟି। ସେଇ ବେସିସରେ ସିଏ ପିଜେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତିଆରି କଲେ, ଜାପାଟା ଆଣ୍ଡ ପାଚୋ ଭିଲା, ଯୋଉଥିରେ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲିବର୍ଟି। ଏଥିରେ ପପୁଲାର ହେଇକି ସେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ, ତାକୁ ଆମେ କହିଲେ ଆଗ୍ରାରିଆନ ପପୁଲିଜମ ବା କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଲୋକପ୍ରିୟତା। So this also happened in Mexico. Again, there was peasant sector, labor sector, military sector, popular sector. ये जो labor union माने petroleum worker हुंतु, railroad worker हुंतु, at the national level they formed a confederation of Mexican workers, CTM. They played a dominant role in the Mexican politics, and that helped in democratizing Mexican politics and Mexican society. So the working class played a major role in political change in or a popular movement in Mexico. तो इधरे जो रिवोल्यूशनरी कोalition वैप्लविक मेंट तैयारी हला, peasant, working class, urban middle class, salaried class, teacher union, government employees, women group, youth organizations. So that formed the basis of the political revolution or political change or political system in Mexico. This is dependent development. So we took the examples of three states. One is Argentina, one is Brazil, one is Mexico. So I need not explain details what happened, how populism emerged, how popular politics emerged, how it changed the character of the politics in these three states and also in entire Latin America, how it helped democratizing Latin American societies, Latin American states and Latin American political forces. These are the positive changes of these states, these societies, impact on these societies. Okay. So next is agrarian and land reform movement. Okay. The agrarian structure टा बा जो कृषि भित्तिक ढांचा गठन एटा कोन लाटिन अमेरिका रे आमे जदि इतिहास को जिबा पोर्तुगीज और स्पेनिश मानकर जो 100 वर्ष दर कॉलोनियल रूल सेतिर ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ agrarian structure ଟା exist करथला बा इमर्ज करथला कोन लैंड रहितला कॉलोनियल मास्टर मानक हातरे ये क्लाइंटल सिस्टम रे मानक दिया हितला कॉलोनियल एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर बज कहियो जस्ट वेट 1 मिनिट मते पानी बोतल धरि
So this is called colonial agrarian structure, which means the crown, the Spanish crown, Portugal crown, they control the entire land in Latin America. ଲାଟିନ ଆମେରିକାର ସମଗ୍ର ଜମି ତାଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିଲା, କଲୋନିଆଲ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ। ସେଥିରେ ସୋଲଜର ମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କନକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଜମି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସବ୍ ଟ୍ରପିକାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ, ଯୋଉଥିରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ହେଲା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଜଏନ୍ କରିଗଲେ। ସୁଗାର କେନ୍, କୋକୋଆ, କଫି, କଟନ, ବାନାନା, ହ୍ୱିଟ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷ ସବୁ ହଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଓଡିଆରେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥକରୀ ଫସଲ, ତାର ମାନିକାଲା ଲାଟିନ ଆମେରିକା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା, ବା କ୍ରିତଦାସ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ସେ ମାଲିକ ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମାଲିକ କଲୋନିଆଲ ମାଷ୍ଟର ମାନେ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଡିକୁଏଟ ଫୁଡ ସପ୍ଲାଏଜ ଯୋଉଟା ଅର୍ବାନ ସେଣ୍ଟରକୁ, ମାଇନିଂ ସେଣ୍ଟର ଯୋଉଠି ଖଣି ଖାଦାନ ଖୋଳା ହଉଥିଲା ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଯିବ, ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୋଉଟା ସେଠି ଖାଦ୍ୟ ଯିବ, ଇ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଥିଲା ଆଗ୍ରାରିଆନ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଏଇଟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା। ଲାଟିନ ଆମେରିକାରେ ଦିଟା ପରସ୍ପର କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟିଂ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନ୍ମ ନେଲା। One hand, there was a favorable soil, labor and transport conditions were modern, capitalist enterprise moved into the fields to establish well mechanism units of production. जोटी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था, रेलवे लाइन अच्छी, रास्ता अच्छी, बा जोटी उर्वर जमी अच्छी, जमी आम देखते ब्राजिल रे, मेक्सिको रे, सेठी भल चाष होला, सेउटू गोटे यूनिट ऑफ प्रोडक्शन तैयारी होला एवं अर्बन सेंटर तार डिमांड सुगार, कटन, राइस, मीट, डायरी प्रोडक्ट ये सब डिमांड है, से अर्बन सेंटर डेवलप कला एवं ये गोटे एग्रीकल्चर मार्केट रे चेंजिंग पैटर्न है लाटिन अमेरिका रे। ता अर्थ एग्रीकल्चर वाज मेड टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ न्यूलिबरल कैपिटल इन फॉरेन कंट्रीज, पर्टिकुलरली इन द कॉलोनियल मास्टर्स। तेणु ये फार्म पॉपुलेशन जे निर्भरशील होता ता परिवार को बचाई से माने लार्ज स्टेट तांक पाखर नथिला, से माने केवल चाकरी करके से रोते। सो लैंड वाज द मेन सोर्स ऑफ वेल्थ इन ट्रेडिशनल रूरल इकोनॉमी। पारंपरिक ग्रामांचल जो अर्थनीति से मुख्य भूमिका किए नौला लैंड। बोथ द लाटिफिंडिया एंड मुटिफिंडिया, मिनिफिंडिया कहला, से वेस्ट होता रिसोर्सेस, स्मॉल लैंड एरिया रे तांकर मालिकाना था, बड़ लैंड एरिया रे तांकर मालिकाना नथिला। तो आपको चेंज जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस है, कृषि संस्कार आसला, से लैंड रिफॉर्म प्रोब्लेम टा आसला। लैंड टा जेहेतु हाई कंसंट्रेशन रोता का हाथ में, अन्य मान घर रोता, जो चाष करुला हाथ रोनता, जमी इंडिया फ्यूडालिज्म था। किंतु कॉलोनियल टाइम पर ये जो एग्रेरियन रिफॉर्म कथा आसीगला, लैंड रिसोर्स टा केमती पुनर्बंटन हम, कृषि संस्कार हम, भू संस्कार हम, गोटे आउटडेटेड एग्रेरियन स्ट्रक्चर जोटा था ताको रखिए ना, ये डिमांड गुड़िया है एवं तापाई आंदोलन है। तेणु खाली लैंड टाक तो बांटीदेले हम नहीं, तो लैंड स्ट्रक्चर टाक बदल पड़ो। स्थानीय सरकार आसिले जमी मेक्सिको रे बा सैंडिनिस्टा रिफॉर्म्स इन निकारागुआ, इटीज रे, तो ऑर्गेनाइज्ड रिडिस्ट्रीब्यूशन लैंड रिसोर्सेस, जो भू संबलटा संगठित भाव में केमती पुनर्बंटन हम, माने बंटा जीव चाषी मान भितर जो मैंने करेंगे, कि नहीं मार्केट ओरिएंटेड होगी बड़ बड़ पुणी जमींदार मानक दिगला, जो मैंने बड़ बड़ पुंजीपति पुणी व्यवहार करे। जमी मेक्सिको रे आफ्टर द रिवोल्यूशन 1910 से प्रथम भू संस्कार आसला, कृषि संस्कार आसला। गुआटामाला 44 मसीह आसला, बोलिविया रे 50T रिवोल्यूशन पर आसला। सो लैंड रिफॉर्म बिगन इन द अर्नेस्ट इन लैटिन अमेरिका इन द लेट 50s विथ द क्यूबन रिवोल्यूशन। प्रकृत में क्यूबार विप्लव पर लैटिन अमेरिका रे लैंड रिफॉर्म गोटे मेजर इश्यू है, कारण से आसला फिडेल कास्ट्रो, ची गुएवारा से नेतृत्व में भू संस्कार से करागला। क्यूबन रिवोल्यूशन, क्यूबार जो कम्युनिस्ट विप्लव है, सी जो क्यूबन रिवोल्यूशन पर जो जमींदारी व्यवस्था ताको पूरा उच्छेद करदे एवं पीजेंट मूवमेंट जो है चाषी आंदोलन से अमेरिका पूरा भयभीत है। ये जो लैंड रिफॉर्म है, टेन्योर सिस्टम टाक पूरा उच्छेद कर दिया क्यूबा रे। जी चाषी ता पाखे लैंड रहा जो कौन कहते कोऑपरेटिव फार्मिंग से कथा आसीगला इन ए सोशलिस्ट पैटर्न। तेणु यार इट हैड इम्पैक्ट ऑन लैटिन अमेरिका, अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। तेणु ये जो लैंड रिफॉर्म मूवमेंट सक्सेसफुल है कि नहीं लैटिन अमेरिका रे।
तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स कौन रहा लैंड रिफॉर्म ये जो मैंने चाष करेंगे तांक पार रहिबो स्टेट कंट्रोल रहिबो एवं अधिक उत्पादन हबो इनइक्वालिटी दूर हबो एवं लैंड और वेल्थ रो जो बंटन से मध्य लोकन सपक्ष रे जीवो एवं लोकन जो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अछि सेटा अधिक बढ़िबो ई गुडा ऑब्जेक्टिव्स डिक्लेयर हला किंतु एटा केते दूर कार्यकारी हला दैट इज ए बिगर क्वेश्चन एथरे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म आसिला सांगठनिक बा ढांचागत परिवर्तन एग्रीकल्चर परफॉर्मेंस इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लैंड ओनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ये टोटल ढांचा बदली गला ये जो विप्लव मान पर समग्र आग्रियन स्ट्रक्चर एंटायर लैटिन अमेरिका रे तापर उदारवादी संस्कार आसिला एवं जो जो जगह सोशलिस्ट रिवोल्यूशन हला लाइक अर्जेंटीना ब्राजिल वेनेजुएला सेठी लैंड रिफॉर्म पैटर्न अलग हला जोटी बुर्जुआजी रिवोल्यूशन हला कैपिटलिस्ट रिवोल्यूशन हला पुंजीपति माने शासन कले सेठी मध्य लैंड रिफॉर्म रो अलग प्रकार हला तेणु कलेक्टिव फार्मिंग एटा क्यूबार है किंतु अलग जगह कलेक्टिव फार्मिंग है नहीं से जो बुर्जुआजी क्लास बा लैंडलॉर्ड्स दे ऑक्युपाइड लैंड्स व्हिच वर अर्लियर ऑक्युपाइड बाय द कॉलोनियल मास्टर्स जोटी पुराना कॉलोनियल मास्टर माने दखल लेथिले जमीर सी आसी दखल करदेले का पुंजीपति माने सेही जमी की दखल करना तेणु ओनरशिप स्ट्रक्चर से सब स्टेट रे विशेष किसी परिवर्तन है दे गॉट द बेनिफिट बर्तमान सेकेंडरी मूवमेंट है पिजेंट एंड लैंड राइट मूवमेंट जमी अधिकार लैंड राइट मूवमेंट है जे पिजेंटी ये खाली पिजेंटी कला नहीं जी स्थानीय लोक मूल बासिंदा से कले जे आम जमी आमर आमको दि जाऊ पॉलिटिकल इकोनॉमिक यार कल्चरल इंपैक्ट रहा land becomes important for them as well as rights of the indigenous people revolve around the question of land तो मूल अधिवासी माने तांकर समग्र आंदोलन जमी भित्तिक थिला बा भूमि भित्तिक थिला कारण तांकर अस्तित्व से जमी ऊपर निर्भर करे से माने तांकर भूमि अधिकार संपर्कित आंदोलन कले चासी माने मध्य भूमि अधिकार संपर्कित आंदोलन कले ये गोटाए विभिन्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट माने सोशियोलॉजिस्ट माने पॉलिटिकल साइंटिस्ट माने याको एनालाइज करचंती जे पिजेंट्री बा चासी कूल केमिति पूर्व भावलेंस एवं भय भितर थिले से माने प्रतिरोध कले आंदोलन कले तांका आंदोलन को हिंसात्मक भाव दमन करागला एवं तांकू देखागला जे से माने परिवर्तन रो विरोधी बा विकास रो विरोधी ई नारे तांका अधिकार को दबी दियागला एक छत्रवादी शासन मानन करे बर्तन दीटा लैंड मूवमेंट स्टडी करिया गोटेला जोटा प्रीवियस चैप्टर कहली जे एमिलियानो जापाटा मूवमेंट इन मेक्सिको तो मेक्सिकन रिवोल्यूशन 1910 रु 20 हला जोतरा एमिलियानो जापाटा आग्रे रिफॉर्म कथा से डिमांड कले ए जो कृषि भित्तिक विप्लव रु से आंदोलन टी आरंभ हला ये आंदोलन मूल लक्ष्य कौन था का विरुद्ध रे ना जो माने जमी लोकंक गाँ रो जमी की नहीं जाइछंती एवं गाँ वाला को बाध्य करिछन तमे जमी रे भाग चासी कर तमे जमी रो मालिक न तो जापाटा कौन कले रिकवरी ऑफ लैंड आंदोलन करे ये जमीटा हला लोक मानकर गाँ रे हमको फेरई दियो ये आंदोलन कले तो से बाड़ उठे देले जो माने से माने जमींदार माने जो बाड़ बसी थे ताको उठे देले तांको दखल करी गले से माने एटा गोटे नेशनल रिवोल्ट रे नॉर्थ मेक्सिको रे जोरदार आरंभ हो गला जो थे चासी कूल जॉइन करी गले एवं पॉलिटिक्स रे मध्य भाग नेले तो जो अपोजिशन से माने कहले ऑल लैंड्स टेकन अवे द पीपल बाय फोर्स वुड हैव टू बी रिटर्न लोक माने जो जमी फेरे दी नहीं एजन तो फेरिया पड़ो सो दिस इज ए टाइप ऑफ काउंटर रिवोल्यूशन तो जापाटा कौन कले ना से माडरोटा संगे जॉइन करके आउ जने जे थिले माडेरो प्रेसिडेंट तांग सहित जॉइन करके पोरिफोर डियाज जे प्रेसिडेंट रे तांको से हटाई देले जे लैंड रिफॉर्म पुणी हबो से हला नहीं नुआ सरकार जी आसला जा प्रतिशोध देला कले नहीं पुणी जापाटा कौन कले ना सशस्त्र विद्रोह कले जोटा जापाटा मूवमेंट हम कहउछंतु से अस्त्र शस्त्र निजे यूज कले 1910 रे तार स्लोगान थिला लैंड एंड लिबर्टी जोटा मु प्रीवियस चैप्टर कहली तांकर स्लोगान हला लैंड एंड लिबर्टी हमर भूमि दरकार स्वाधीनता दरकार स्वतंत्र दरकार से गोटे आर्मी पूरा तैयारी करदेले क्या नहीं कि ना सशस्त्र चाषी मान को नहीं से माने प्लांटेशन नु गाँ रु चाषी क्षेत्र से चाषी माने जॉइन करिगले सेतरे एवं से बल प्रयोग करके जमी गुड़ा दखल करिगले तो जापाटा ई पर्यंत माडर को समर्थन करुले जे लैंड रिफॉर्म जे पर्यंत माडार समर्थन करुला जे शासक दल तापरे तांको परे से निजर ओन एग्रेरियन प्रोग्राम से घोषणा कले
ଏବଂ ସେଇଥିରେ ସେ କହିଲେ ରିଟର୍ନ ଅଫ ଦ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ ପିପଲ, ମୂଳ ଅଧିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜମି ଫେରାଅ, ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଲିବର୍ଟି। ତ ଇମିଡିଏଟ୍ ସେମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପୋଜିସନ କଲେ ଯୋଉଟା ତାଙ୍କଠୁ ଛଡେଇ ନିଆ ହେଇଥିଲା। those who are difficulty would receive loan through expropriation, ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ପାଇବେ। 1/3 of all the lands, 1/3 ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କୁ ଜାତୀୟକରଣ କରିଦେଲେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ନେଇଗଲା। So Zapata held the field against successive federal governments. Peasants rallied to Zapata's support. By the end of 1911, he controlled most of Morelos. Later, he enlarged his power to Gurao, Exaka, Pubala, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট जो फेडरल स्टेट বা फेडरल डिस्ट्रिक्ट। तो ଜାପାଟାର ଫୋର୍ସ ମାନେ ଅକୁପାଏଡ୍ ମେକ୍ସିକୋ ସିଟି 3 times in 1914 and 15। 3 ଥର ମେକ୍ସିକୋ ସହରକୁ ସେମାନେ ଦଖଲ କରିଗଲେ ଏବଂ ଆଗ୍ରେରିଆନ୍ ରିଫର୍ମ ବିଭିନ୍ନ ଜେନେରାଲ ମାନେ ଫେଲ୍ କଲେ। ତାପରେ 1914 ଏମାନେ ଦଖଲରେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 1914 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା ଯେ ଆଗ୍ରେରିଆନ୍ ରିଫର୍ମ ହବ। So this is a success story of the peasant movement led by Zapata in Mexico through armed rebellion। ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ମାଧ୍ୟମରେ so they made a success story of agrarian revolution, that is Zapata revolution। Its main slogan was land and liberty, ଜମି ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଥିଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା ମୁଭମେଣ୍ଟ ସେମ୍ ଟେରା MST। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଯଦି ଆମେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖିବା ଲାଟିନ ଆମେରିକାରେ, ସେଟା ହେଲା MST। ତାକୁ ଲାଟିନ ଆମେରିକାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ କୁହାଗଲା ମୁଭମେଣ୍ଟୋ ସେମ୍ ଟେରା ଅର୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲସ୍ ପିଜେଣ୍ଟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯୋଉଟା ବ୍ରାଜିଲରେ ହେଲା ଏବଂ ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ତାର ହେଇଗଲା। ইয়ার অর্থ କ'ଣ, ମାନେ ଜବରଦସ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଚାଷ କରାଗଲା ଜମିକି and by taking over offices of the land reform in various Latin American nations। MST ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଉ ଗରିବ ଚାଷୀ, ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ, ଭୂମିହୀନ ଶ୍ରମିକ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଦରିଦ୍ର ମାନେ ଜଏନ୍ କରିକି ଇଏ ସବୁ ଜମି ଦଖଲ କରି ଚାଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ, MSTଟା ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଲା କିନ୍ତୁ ୟାର ପଲିଟିକାଲ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଜୋର ଅଛି, ୟା ପଛରେ ବହୁତ ଭୋଟ ଅଛି। ୟାର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଜମି ଦଖଲ କରିବ ଏବଂ ଗରିବ ଚାଷୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜମି ଗୁଡାକୁ ବାଣ୍ଟି ଦବ। ତେଣୁ କଲେକ୍ଟିଭ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ମାନେ କୋଠ ଘର ଭଳିଆ, କୋଅପରେଟିଭ ଭଳିଆ ଜମି ଗୁଡାକୁ ରଖିବ ଏବଂ କୋଅପରେଟିଭ ପ୍ରିନ୍ସିପଲରେ ଚାଷ ହବ, ଯୋଉଥିରେ ସମସ୍ତେ ଲାଭବାନ ହେବେ, ଚାଷୀମାନେ ଚାଷ କରିବେ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟିସିପେଟୋରୀ ଡେମୋକ୍ରାସି କୁହାଯାଇ ପାରିବ। ଏଥିରେ ଲୋକମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କଲେ, ସମ୍ବଳ ଦଖଲ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ବଣ୍ଟନ କଲେ ବା କଲେକ୍ଟିଭଲି ଚାଷ କରି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଚାଷର ଫଳ ପାଇଲେ। So this is called MSC struggle or MST movement, movement of landless peasants, MST। However, the alternate health and education environment framework that the MST called for, ଏଥିରେ କୁହାଗଲା ଯୋଉଥିରେ ଏଥିରେ ନ୍ୟୁ ଲିବରାଲ ବିଜିମ୍ ବିରୋଧ କରିକି ସେମାନେ କହିଲେ। ଏବଂ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସେମାନେ 1.5 ଲାખ ତାକୁ କୁହାଯିବ ହେକ୍ଟର, ହେକ୍ଟରଟା ଏକରରେ କେତେ ହବ ତାକୁ ଇଏ କରିଦବ, ହେକ୍ଟର ଏମାନେ ସିଲିଂ ସରପ୍ଲସ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ପୋର ଭିତରେ ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ତ କଲୋନା ଷ୍ଟେଟ ଯୋଉଟା ରାଜଧାନୀ ଲା ପାଜରୁ ବହୁତ ଦୂର, 80 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପ୍ରାୟ, ସେଠି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେ ଲିଡର ଆଞ୍ଜେଲ ଡୁରାନ, ସିଏ 1300ରୁ 18 ହେକ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଜେ ବଣ୍ଟନ କରିଦେଲେ। ସୋ ବଲିଭିଆରେ ଯୋଉଟା MSB ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ଏଟା ଇଣ୍ଡିଜିନସ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଠିକାର ଯୋଉ କୁଏଚା ଆଇଏମଆରା ତାଙ୍କର ଲୋକାଲ କମ୍ୟୁନିଟି, ସେମାନେ 22 ମିଲିୟନ ହେକ୍ଟର ବାଣ୍ଟିଦେଲେ। ସୋ ବ୍ରାଜିଲରେ MST ମଧ୍ୟ ଦ୍ୟାଟ୍ ବିକେମ୍ ଏ ବିଗ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଥିରେ ଯିଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୁଲା ଡି ସିଲଭା, ସିଏ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏବଂ ସେଭରାଲ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ହେକ୍ଟର୍ସ ଫାର୍ମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫ 2 ମିଲିୟନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ପିପୁଲ ତାଙ୍କୁ ବଣ୍ଟା ହେଇଗଲା। So 4% landed elements occupying 70% of farmland in Brazil। ବ୍ରାଜିଲର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଯେ 4% ଲୋକ ସେମାନେ 78% ଜମିର ମାଲିକ ଥିଲେ, ମାନେ ବଡ ବଡ ଜମିଦାର। ତ MST ଏଇଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦାବି କଲା, କାରଣ ନା ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, ଏଇଟାକୁ ତମେ ବଣ୍ଟନ କର। Now MST has occupied more than 100 states and poised to occupy 50 more in the weeks to come। Recently Lula asked MST to be patient। ଲୁଲା କହିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ଯେ ତମେ ଯୋଉ ଦାବି କରୁଛ ଆମେ ତ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭୂସଂସ୍କାର ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା। ସୋ ତାର ଯିଏ ଲିଡର ମଉରା,
से नोटिस देले ना शीघ्र करो ना आमर धैर्य ना आम दखल कर चलू तो एमएसटी सिवियर गुड़ाए लीडर मन को अरेस्ट करागला कोलंबिया से भाया स्टेटमेंट गोटे देला पिजेंट आर्म डुईंग है सो बर्तमान देखा एमएसटी इज ए मेजर सक्सेस of our land reform movement in Latin American countries like Venezuela, Uruguay, Ecuador, Mexico, Brazil, etc. So Latin America major countries MST गोटे बड़ मूवमेंट है जे जोटा सरप्लस लैंड अच्छी जमींदार मान पाखे अच्छी ताको आनिकी साधारण लोकों भितर बांट दिस बिकेम ए वेरी पॉपुलर डेमोक्रेटिक मूवमेंट एंड इट इज नोन एज participatory democracy. Participatory democracy for two reasons. People participated in the movement. Who are these people? They are common people, they are weak people, they are poor people, they are landless peasants, rural poor. They organize the backbone of this MST movement, and they not only confined themselves to one country only, several Latin American countries. Both Latin American countries change the politics. They emerged as a powerful political group, political lobby influencing the government. कौन सी सरकार इवन लुला भाया जे लोकप्रिय राष्ट्रपति बा शक्तिशाली राष्ट्रपति सी मध्य तांकु भय कले एवं तांकु प्रतिशोध देले आमे भूसंस्कार करिवा. So that is interesting. Anyway, so what is the name of MST? That you must write it down. That is in a Latin language. तार अर्थ हला जे लैंडलेस पीजेंट्स मूवमेंट भूमिहीन चाषी आंदोलन तार लैंग्वेज एक्जाक्ट है लाटिन अमेरिकन टर्म रे मोविमेंटो. मोविमेंटो माने मूवमेंट. सेम ACM दैट इज लैंडलेस. टेरा TRRA पीजेंट सेटी ब्राजिलियन लैंग्वेज रे एटा होची पीजेंट चाषी के टेरा. सो मोविमेंटो लेखो लेक्चर नाही तमे तो मात्र 2 जण अछ मोनालिसा एंड पंकजिनी. am I right? मोनालिसा वॉइस ब्रेक होची बहुत ही. वॉइस ब्रेक होची ना चली तो ठीक है कोन तो नेटवर्क को जाने बोल तमे मात्र 2 जण अछ नहीं. हेलो हाँ पंकजिनी तमे 2 जण अछ तो मोनालिसा तमे. हाँ सर आउरी भी थिले पर वॉइस ब्रेक जो साथ से मैं लेफ्ट करी गले. वॉइस तो मु तो कोई प्रॉब्लम हो जे ईयर कॉर्ड दरकार ना कोन. सर आप कंटिन्यू करन तो क्लास. कोन कोन साउंड हो तमे आउ कोन बाहर अछि की. नहीं सर मु घरे अछि मोनालिसा को आडे साउंड होची. अच्छा. Anyway, so this is very important chapter and topic. All of you should join. Beginning of our class, you done first year international politics. More than 40 plus students. तमरो 7-8 जन 10 जन पुणे आजी 2. Anyway, so you write it down. तो लिखि दियो movimento sem terra. Movimento sem terra. लिखि लो. MOVI movimento MENTO movimento sem ACM Terra, TRRA. So this is one of the biggest peasant movements in the history of Latin America that changed and influenced the politics, the economy and the society as well. The अर्थनीति की ऊपर गंभीर प्रभाव and it also influenced the economy. It influenced politics and also influenced society in Latin America. So Movimento Sem Terra is one of the bigger peasant movements with larger consequences for Latin America, and this is one of the powerful movements in the history of the world. You can say with many consequences. बहु प्रभावशाली लक्षण थिबा ये जो बड़ आंदोलन ये विश्व रे मध्य एक गुरुत्वपूर्ण आंदोलन जे लाटिन अमेरिकार समाज अर्थनीति और राजनीति के प्रभावित करिछि. सो व्हाट डिड इट टीच यार माने कोन शिक्षा कोन हला यार बड़ शिक्षा हला जे the common people, the poor people, if they are organized, they can be a powerful group. If their slogan is very attractive, radical,
but can catch the minds of the demands of the common people, marginalized people. So, land and liberty. This was the catchy slogan of the movement. Land and liberty. Jami ebong Swadhinata. So the poor peasants, landless peasants and rural poor were formed the backbone of this movement. ये जो आंदोलन मेरुदंड हेले किए गरीब चाषी बा ग्रामांचल गरीब लोक मैंने संगठित हो गले इलेक्टोरल पावर पॉलिटिकल पावर बहुत बढ़ीगला बार्गेनिंग पावर बढ़ीगला सो राष्ट्र उपरे एवं शासक गोष्ठी मान प्रभाव बहुत है एवं अर्थनैतिक भाव में दे कुड गिव लैंड्स टू द पुअर पीपल गरीब चाषी मानक से जमी देदेले दखल करिकी प्रेशर पकईकी बाय फोर्स बाय आर्म्ड रिबेलियन जो दरकार पड़ा अस्त्र शस्त्र से धरले सो इट हैड ए कास्केडिंग इफेक्ट ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ लैटिन अमेरिका इटा गोटे राष्ट्र मध्य सीमित नथिला आमे देखिले गुड़ाए राष्ट्र लैटिन अमेरिकार ब्राजिल रे हो मेक्सिको रे हो गुआटामाला रे हो ई सब राष्ट्र मानकर से बहुत शक्तिशाली हेले एवं एटा चारियाडे व्यापी गला आमे कह जाई परिबो ओके so this is all about this movement. Now we can come to the next chapter, church and social transformation in Latin America. As you will see, church has a very bigger role, not confined to what you can say religion in Latin America. Church गोटे धर्मीय अनुष्ठान किंतु लाटिन अमेरिका रे ये जो कैथोलिक चर्च यार सीमा बा सीमितता केवल धर्म भीतर ना यार कारण है जो स्पेन आउ पर्तुगाल यूरोपीय राष्ट्र से होती क्रिश्चियन राष्ट्र से कैथोलिक चर्च टाक शक्तिशाली कले लाटिन अमेरिका दो इट वाज नॉट द ओरिजिनल रिलीजन ऑफ लाटिन अमेरिका रे ये जो क्रिश्चियनिटी रो बेसी प्रभाव नथला एमाने जो आसिले को माने जो पर्तुगाल और स्पेनिश माने से माने चर्च रो प्रचार करे तो चर्च also brought revolutionary changes, political changes, social and economic changes. Church propagated for political changes or involved itself in governmental affairs, or you can say call it as political activism of the church, the 60s and 70s. 60 एवं 70 दशक रे चर्च राजनीतिक भाव में सक्रिय होगा लाटिन अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट रे जो तुम देखिबो तो ये जो अथॉरिटेरियन मिलिटरी रूल ताकू समर्थन करिकी चर्च रोटे प्रचंड भूमिका रहा तो चर्च जो आसिला सी बेले बेले अपोजिशन रे अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट रो अपोजिशन ने रहा तो रिसेंट चैलेंजेस है ये जो चर्च रो भूमिका टाकू क्यूबा ताकू चैलेंज करछि क्यूबा रे से माने बेसी शक्तिशाली ही पारना प्रेशर ग्रुप भाव में अलग जो पॉलिटिकल पार्टी लेबर ऑर्गेनाइजेशन अदर पॉपुलर सेक्टर्स से बैन करा मिलिटरी रूल रे तो सोसाइटी इन जनरल जो देखिए सी प्रोग्रेसिव सेक्शन कैथोलिक चर्च रो कंपटीशन बारंबार फेस कले नॉन रिलीजियस सेगमेंट्स अलग सोसाइटी इंडियन सोसाइटी देखियो एशियन सोसाइटी देखियो इथे अलग सोसाइटी डेमोक्रेटिक सोसाइटी जोटी एंटी कॉलोनियल मूवमेंट हिची परवर्ती पर्यायर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन मानकर विशेष भूमिका रहा ना पॉलिटिक्स रे डेमोक्रेटाइज होगला बा सेकुलर गवर्नमेंट है किंतु लैटिन अमेरिकन कंट्री मानकर से जो चर्च रो नॉन रिलीजियस रोल रहा अण धर्मीय भूमिका चर्च गोटे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन तार काम अलग किंतु व्हाट हैपेंड देयर इट हैपेंड दैट चर्च बिकम एक्टिव पॉलिटिकली तो राजनैतिक दल मान छिड़ा कर लेबर यूनियन मान शक्तिशाली कर एक छत्रवाद विरोधी आंदोलन में सक्रिय भूमिका नबारे चर्च गोटे बड़ भूमिका रहा तो पोप जॉन पॉल जो इवेंजेलाइजेशन ऑफ द रीजन अंचल चर्चीकरण करवा रेडिकल एक्टिविस्ट ग्रुप आसिले जो माने रक्षणशील चर्च को चैलेंज कले ताकू ये चैलेंज कले तो देयर इज ऑलवेज ए कॉन्फ्लिक्ट एट द लेवल ऑफ सिविल सोसाइटी बिटवीन चर्च एंड अदर प्रेशर ग्रुप्स और सोशल ग्रुप्स तो चर्च पाखरे गुड़ाए पॉलिटिकल पावर रहा गुड़ाए इकोनॉमिक पावर रहा रिसोर्सेस रहा जहाँ फल पॉलिटिकल एक्टिविज्म द चर्च बेसी सक्रिय है कौटी ब्राजिल रे निकारागुआ रे पेरू रे ये बहुत पावरफुल से माने तार पॉपुलर कन्स्टिट्यूएंसी थिला बहुत लोग समर्थन करथुले सेकेंड चैलेंज है कैथोलिक चर्च रो जे यार डिमिनिशिंग कैपेसिटी आस्ते आस्ते कमी गला लोक तो ग्रहण कले नहीं
ताकू से रिवाइव करिया पे चाहिए। तो बर्तमान न्यू चर्च इन कंटेम्पररी टाइम्स आसला जे खाली रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने जो लार्जर सोशल स्ट्रक्चर है चर्च प्लेड ए डोमिनेंट रोल। तो ये ग्रासरूट रे निजको एम्पावर कला लोकों के इश्यू से आइडेंटिफाई कला लोकों को मोबिलाइज पॉलिटिकली सोशल करिवारे भूमिका ग्रहण कला। सो इट कॉल्ड फॉर रिलीजियस मीटिंग धर्मीय मीटिंग डाकला बट दे आर गेव द पॉलिटिकल स्लोगन्स एंड इकोनॉमिक स्लोगन्स अदर सोशल स्लोगन्स। So we find church had a traditional political role from colonial times. Colonial period ru आमे चर्च रो गोटे पारंपरिक राजनीतिक भूमिका देखि आसु तार डिक्लाइन हेछि पुणी मध्य तार अभ्युदय हेछि। तो फर्स्ट थिंग पॉलिटिकल कंपटीशन कैथोलिक चर्च पॉलिटिकली कंपोर्ट करूछि गोटे इश्यूज उपरे डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स मार्केट ई सब तार कंट्रीब्यूशन रहउछि सोशल वेलफेयर रे एजुकेशन रे। तो स्टेट तक सब्सिडी दउछि चर्च को एजुकेशन स्प्रेड करिया पई हेल्थ स्प्रेड करिया पई। सो चर्च डेवलप्ड ए वेस्टेड इंटरेस्ट इन द पॉलिटिक्स इन द सोसाइटी इन द इकोनॉमी ऑफ Latin American countries except Cuba and other few countries. Religious innovation madhya religious preaching सहित religious values you can say Catholic Church तार धर्मीय प्रचार सहित बा धर्मीय जो रिचुअल सहित अलगा इश्यू मध्य से उठाउछि। तो ये जो थियोरीटा कौन थियोरी गोटे हला ये जो रिगार्डिंग चर्च एक्जिस्टेंस ये थियोरी संपर्क रे मतामत अछि गोटे हला सेकुलराइजेशन थियोरी धर्मनिरपेक्ष तत्व कौन दो इट इज ए religious institution but it practices day to day issues raises day to day issues and involves itself in secular way and secular issues जदि एटा धर्मीय अनुष्ठान चर्च टा जेमि मंदिर मस्जिद मठ गुरुद्वार अच्छी चर्च गोटे रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ता काम है कौन धर्मर प्रचार करवा धर्म रिचुअल करवा किंतु ये कौन करुच्ची सेकुलर रोल करुच्ची। सेकुलर रोल कौन चर्च लाटिन अमेरिका रे ना जोटा लोकंकर इश्यू राजनीतिक इश्यू अधिकार इश्यू डेवलपमेंट इश्यू एजुकेशन इश्यू हेल्थ इश्यू ताकू से उठाउछि। तो दैट इज सेकुलराइजेशन थ्योरी बिकॉज चर्च इज रेजिंग इन्वॉल्विंग इटसेल्फ इन सेकुलर इश्यूज दैट्स व्हाई इट इज मेकिंग इट रेलिवेंट टू द पीपल। खाली धर्म कथा कहले किए आजिकली पचारिबा तेणु जेहेतु लोकों समस्या को उठाउछि बा स्टेट रु सब्सिडी पाउछि से काम करूछि हेल्थ सेक्टर रे काम करूछि हॉस्पिटल गुड़ाए करिछि ताको परिचालना करुछि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन परिचालना करुछि। तो नेचुरली चर्च रो गुरुत्व प्रभाव एवं मोबिलाइजिंग कैपेसिटी रहउछि। आ गोटे कोन थ्योरी ऑफ रिलीजियस कंपटीशन धर्मीय प्रतिद्वंदिता रिलीजियस मार्केट प्लेस रे धर्म बाजार रे अलगा जो रिलीजन अछन ताकू ये कम्पीट करुछि निजको बेटर बोली कहउछि बा सेतरे निजर किमिति विलुप्त हबो नै विपर्जय हबो नै ताकू से देखुछि ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन मिलियंस ऑफ लैटिन अमेरिकन को केमिति से धरि के रखि परिबो से उद्यम गुड़िक करुछि। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलीजियस कंपटीशन। सो इट इज इंटरेस्टिंग आमे देखछथि हला। सो हिस्टोरिकली Catholic Church in Latin America is one of the most powerful dominant institution in Latin American society since the colonial period. औपनिवेशिक समय रु आमे देखुचंती लाटिन अमेरिका रे समाज सब राष्ट्र खाली लाटिन अमेरिका गोटे दुटा राष्ट्र नुहे चर्च गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करुच्ची राजनीति रे सामाजिक क्षेत्र रे अर्थनैतिक क्षेत्र रे धार्मिक क्षेत्र तो ऑब्वियसली एंड सांस्कृतिक क्षेत्र रे। किंतु जो आधुनिकीकरण है लोक मान टेक्नोलोजी आसला पाठ आसला शिक्षा आसला एमाने चर्च को गुरुत्व दौना चर्च रो प्रभाव आस्ते आस्ते कमेला। तो से रक्षा पाई निजर अस्तित्व को बचा रखा चर्च इनवल्व कला निजको अलग समस्या रे जोटा धर्मीय नुहे सपोज पॉलिटिकल समस्या रे गोटे एक छत्रवाद शासन अच्छी ता विरुद्ध गणतांत्रिक आंदोलन है लोक आंदोलन करे एक छत्रवाद हटि जाऊ वी नीड डेमोक्रेसी वी नीड इलेक्शन एटसेट्रा एटसेट्रा चर्च रोल कर तो चर्च बिकेम पॉपुलर जो थे मेजोरिटी लोक अंशग्रहण कले धर बर्तमान आंदोलन हम इंडिया रे लोक मान चाकरी दिया यंग मान पीपुल माने विल डिमांड जॉब एंड गेट ए मूवमेंट तो आंदोलन कले चाकरी दिया जाओ यहाँ तो रिलीजियस आंदोलन नुहे कि रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भाग नब दैट ऑटोमेटिकली विल बिकम पॉपुलर से माने सक्रिय एवं लोकप्रिय हेबे। सेम थिंग हैपेंड इन लैटिन अमेरिका। तेणु जोटा डेमोक्रेटाइजेशन गणतांत्रिकरण है सेकुलराइजेशन धर्मनिरपेक्षकरण है से जो गुरुत्व कमीगला ये कौन कले ना सेकुलर ग्रुप मान सहित जोगाजोग कले
ଯେମିତି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିଜ, ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ, ଲେବର ୟୁନିୟନ, ଟିଚର୍ସ ୟୁନିୟନ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୟୁନିୟନ, ୟାଙ୍କ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚ ହାତ ମିଳେଇଲା ବିଭିନ୍ନ ଇସ୍ୟୁରେ। ତ ଏଇଠି କମ୍ପିଟିସନ କଲା ତାଙ୍କ ସହିତ, ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ପଛକୁ ହଟିଲାନି, ସେ ଆଗରେ ରହିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଲା। ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ ଏ ନନ୍ ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅର୍ ସେକୁଲାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ବାଇ ଏ ରିଲିଜିୟସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଣଧାର୍ମିକ କାମ বা ধর্মনিরপেক্ষ কামরে নিজକୁ সম্পৃক্ତ করা। দিস ইজ ইন্টারেস্টিং আন্ড ୟୁନିକ୍ ইন ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା ଅଲସୋ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ। ପୃଥିବୀରେ ইয়ার কম এক্সাম্পল ବହୁତ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଲାଇକ୍ କ୍ୟାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ was involved in secular politics or secular economics or secular issues, okay, for popular mobilization and to make it relevant. So this is a struggle for existence by a religious group in a non-religious environment. ଗୋଟେ ଅଣଧର୍ମୀୟ ପରିବେଶ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଧର୍ମୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ଲଢ଼େଇ, ତାର ଝଲକ ବା ତାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାନ ସୋସାଇଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ କୋଉଥିରେ, ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ପଲିଟିକ୍ସରେ। ହାଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ଇଜ ଇନଭଲ୍ଭ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ହାଉ ଚର୍ଚ୍ଚ ହାଜ ସେପ୍ଡ influence Latin American politics and vice versa. How that means how Latin American politics has influenced church. ଉଭୟ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି, ଉଭୟ ଉଭୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ରାଜନୀତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ଏବଂ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାର ରାଜନୀତି ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଓକେ, so this is all about this chapter. Then we can go to the next chapter, that is ସବୁ ତ ସରିବନି, ଯେତିକି ପସିବଲ ଅଛି କରିବା। revolutionary movements and social change, ବୈପ୍ଳବିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯୋଉ ହେଲା ସେଥିରେ କେମିତି ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। So revolution as a part of social change, ବିପ୍ଳବ ବଳରେ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଆମେ ଦେଖିବା ସକ୍ସେସଫୁଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କୋଉଠି ହେଲା, ମେକ୍ସିକୋରେ ହେଲା, ବଲିଭିଆରେ ହେଲା, କ୍ୟୁବାରେ ହେଲା, ନିକାରାଗୁଆରେ ହେଲା। So there are the history of major revolutions in Latin American countries, in Mexico 1910, Bolivia 1952, Cuba 1959 and Nicaragua 1979। এই ସବୁ ମସିହାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା ଫର୍ବାଣ୍ଡୋ ମାର୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଲିବରେସନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଲ ସାଲଭାଡୋରରେ, ତାପରେ ସାଇନିଂ ପାଥ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ପେରୁ। there are so many movements. So revolution is part of the social change, that is the theory. ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା ଯେ ନ୍ୟୁ ଆମ୍ବିସନ୍ସ ଯୋଉ ଇମର୍ଜ କଲା କଲୋନିଆଲ ପିରିୟଡ ପରେ, ଏଥିରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ ମାନେ, କ୍ଲର୍ଜିମ୍ୟାନ, ଏଇ ଏଗେନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ତାଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ପଲିଟିକାଲ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କ'ଣ, ଏଇ ଯୋଉ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ। ରିଭଲ୍ୟୁସନ ଡଜ ନଟ୍ ହାପେନ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି, ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ବି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ। ଏଟା ସଂଗଠିତ କରାଯାଏ, ଅଟୋମେଟିକ ହୁଏ। ଅର୍ଗାନାଇଜ ମନ ଇଚ୍ଛା କରିଦେଲା, ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ସମ୍ ଇସ୍ୟୁ, ଦେୟାର ମଷ୍ଟ ବି ସମ୍ ବେସିସ୍, ମାନେ ଗୋଟେ ପରସିଭ୍ଡ ବେସିସ୍, ଗୋଟେ ରିଏଲ ବେସିସ୍। ଅନ୍ୟାୟ ହଉଛି, ଅତ୍ୟାଚାର ହଉଛି, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇଟା ହେଲା ରିଏଲିଟି। ଏବଂ ତା ଲିଡରସିପ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଦରକାର। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଥରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଦେଲେ, ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହବନି। You need an organization to carry forward the revolution to make it success. ଯେମିତି କ୍ୟୁବାରେ ଫିଡେଲ କାଷ୍ଟ୍ରୋ, ଚି ଗୁଏଭାରା ସେଠି ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରିଭଲ୍ୟୁସନ କଲେ, that happened because of the organization, because of the vision, the ideology, because of real basis of revolution. ଏଠି ବିପ୍ଳବର ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଭିତ୍ତି ଥିଲା, ତା ସହିତ ଖାଲି ବାସ୍ତବ ଭିତ୍ତି ରହିଲେ ହବନି, ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଶୋଷଣ ସବୁଆଡେ ହଉଛି, ସବୁଆଡେ ବିପ୍ଳବ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମିଟେଡ ଲୋକ ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସଂଗଠନ ନ କରିକି ତାକୁ ଲାଷ୍ଟ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ସକ୍ସେସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପହଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରାଡିସନାଲ ହାୟରାର୍କିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସୋସାଇଟି ଇନ୍ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକା, ତାର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଇକୋନୋମିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ୍ ଅଛି। ସୋସିଆଲ ହାୟରାର୍କିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ଜମିଦାର, ଶୋଷକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ପୁଞ୍ଜିପତି ମାନେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରୁଛନ୍ତି, ମେଜର ଲୋକ ଗରିବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଥରିଟେରିଆନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଯୋଉଟା ଅଳ୍ପ ଲୋକ କେବଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମିଡଲ କ୍ଲାସ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କରୁଛି, ସେ ଷ୍ଟାଟସ୍ କୋ ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି। ଇ ସବୁ ମେଜର କାରଣ ଯୋଉଥିରେ ମାନେ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହବାର ବେସିସ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ମଲ୍ଟି କ୍ଲାସ ଆଲାଏନ୍ସ, ବହୁ ଶ୍ରେଣୀ ଭିତ୍ତିକ ମହାମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବ, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଏକଜୁଟ ହେଇପାରିବେ। ସୋ ଦେଜ୍ ଆର୍ ଦ ରିଜନ୍ସ। ଲେଟ୍ ଅସ୍ କମ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ରହିବା ଦରକାର, ଅଥରିଟେରିଆନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିବା ଦରକାର, ଶୋଷଣ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିପ୍ଳବଟା ହେଇପାରିବ। ଲେଟ୍ ଅସ୍ କମ୍ ଟୁ ମେକ୍ସିକୋ। ଏଇ ସେ କବାଟଟା ବନ୍ଦ କରିଦେ, ସାଉଣ୍ଡ ହଉଛି। So let us come to Mexico.
सो मेक्सिको रे कौन हला 19th सेंचुरी रे जे डियाज थिले सेठी भायोलेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान रो बारंबार उल्लंघन हला सो देयर वाज डिक्टेटरशिप एकछत्रवाद थिला सी भाबिले जे एकछत्रवाद द्वारा ही आधुनिकीकरण मेक्सिको रे ही परिबो बा मेक्सिको कैन बिकम ए व्हाट स्टेट modern state by way of dictatorship. So Mexico economic development foreign capital आसी करिवे एवं स्पेशल सब्सिडी ताकू दला सो यूएस 1910 बेलू को मेक्सिको रे कोन हला ना जेते खणी अछि मेक्सिको रे तार मोर देन 70% खणीर मालिक किए हला अमेरिकन कंपनी माने एवं जो मेटल इंडस्ट्री धातव शिल्प थिला तार 72% मालिक अमेरिका हला एवं रबर बिजनेस तुम जानी मेक्सिको इज फेमस फॉर रबर इकोनॉमी रबर बिजनेस जो रबर उत्पादन हुए रबर गछ जो रबर चाष तार 68% मालिकाना अमेरिका पाखर थिला एवं ऑयल मध्ये सेठी अछि तैल खणीर बर्तमान जो ट्रम्प और मेक्सिको भीतर झगड़ा चलुछि 68% 58% ऑयल टा कंट्रोल थिला अमेरिका दैट मीन्स 80% ऑफ मेक्सिकोज इंडस्ट्री माइनिंग एटसेट्रा आर कंट्रोल्ड बाय फॉरेनर्स सो ये जो डियाज फॉरेन कोर्ट इंटरेस्ट ताकू ये कले एवं एकछत्रवादी शासक जी सी आर्मी की संपूर्ण अधिकार देदेले लोक माने आंदोलन कले तांको बाड़ापिटा करिवे जेल रखिवे मौलिक अधिकार उल्लंघन करिवे तो जी विरोध कला ताकू जेल ले पुरै दियो तो सी गोटे प्लान कले सान लुइस पोटेसी इन अक्टोबर 1910 पॉलिटिकल रिफॉर्म हबो एवं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल आसीबो तो 1911 बेलू विद्रोह चारिआडे हो गलानी माने मेक्सिको रे सेथरे पास्कल ओरेजुको जे लोकल मर्चेंट जणे पांचो एवं माडेरो ये समस्ते से प्लान रो अंश विशेष रे गोटे रिवोल्यूशन रे एक्टिव हो गले सरकार बदलेबा अर्थनीति बदलेबा जो फॉरेनर माने कंट्रोल करछन तांका विरुद्ध रे जिबा इत्यादि तो समग्र देश रे विद्रोह रो बन्ही जड़ी गला 1909 बेलू पिजान लीडर जे जापाटा जो कथा में प्रीवियस चैप्टर रे सुनुथले सी माने हजार हजार संख्यार रिक्रूट करदेले कोन सो वॉइस सुबुजिटी मोनालिसा यस सर हां नहीं से आउ जण के लेफ्ट करियला हमको ऑडियो मत ऑडियो नहीं मोर सर हो जाउछे से छाड़ी पड़ला कहीं हां सर कह के जनी जाने मु जानी नहीं सर से मारे को कौन प्रॉब्लम होची हमरा एते कम पिला रहला के तमे एग्जैक्टली वेयर यू नाउ कटक नहीं सर मु झारखंड पळे आसी किरीबुरु रे अछि ओह कोदर करे एंड मोनालिसा इज इन सर मु कटक रो हां अच्छा तमे जेके भी तो ना नाइ सर मोरो हमरो सर नरसिंहपुर बड़मा नरसिंहपुर हमरो नहीं तमर इग्नो सेंटर टा कोठी इग्नो सेंटर मोरो आरसी रे मोरो अछि सर ओह अच्छा अच्छा बट तुम घर आज्ञा होची बडवा नरसिंहपुर सेठी नेट पे आज्ञा ठीक अछि ओके आज्ञा तो माडेरो आज प्रेसिडेंसी नवंबर 11 ये जो नुआ एडमिनिस्ट्रेशन आसिला डियाज रो पतन हला डियाज जी तांगा राष्ट्रपति एकछत्र राष्ट्र थिले सो दे फेल डाउन द गवर्नमेंट ऑफ डियाज फेल डाउन तो लोकंकर जो बड़ मूवमेंट हला जापाटर जोटा मूवमेंट हला लैंड रिफॉर्म मूवमेंट so this is a big revolution in Mexico bringing in political change labor unrest then peasantry so other areas रे मधर revolution है गला जोटा तांको गवर्नमेंट को चैलेंज कला एंड फेलिक्स डियाज जे प्रेसिडेंट को भणजा हेबे पुत्रा हेबे से माने काउंटर रिवोल्यूशन पुणी कू कले आउ थरे मिलिटरी माध्यम रे फेरिया पई तो डियाज फोर्सेस जे माडरो इनसी ताकू विरोध कले प्रथमे एवं से माने माडरो को परास्त करले सो दिस इज फॉल ऑफ हुएर्ता तांकर पराजय हला सिविल वार नागरिक युद्ध आरंभ हेगला अराजकता टोटल मेक्सिको रे देखा देला एवं मेक्सिको सिटी रे एवं अलगा एरिया रे एमाने जो नेतृत्व नउथरे से माने विक्टोरियस हे गले तापरे अमेरिका गुड़ाए पॉलिटिकल फोर्स को सपोर्ट करिगला तार इंटरेस्ट पई तो फाइनल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नुआ कॉन्स्टिट्यूशन आसला 1970 रे जोथरे मेक्सिकन लोक माने अधिक अधिकार पाइले तो एटा रिवोल्यूशन फल रे संभव हला
तो फॉर्मली एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द कानाजा वन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो 1917 संविधान से बेसिस रे कारांजा राष्ट्रपति निर्वाचन जीतिले एवं मे 1 1917 राष्ट्रपति रूप से शपथ ग्रहण कले पुणी अराजकता सृष्टि होगा लैंड लेबर मूवमेंट जापातर चलला एवं कारांजा चूज टू ओवरलुक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन्स पुणी संविधान को से उल्लंघन करिकी पुणी विद्रोह आरंभ होगा एंड पुणी युद्ध आरंभ होगा जापाटिस्ट माने से दखल करिगले से माने कॉन्स्टिट्यूशन टू आउरी अधिका कि चाहिए किंतु कारांजार मेन जापाट को हत्या कले 1919 रे तो 1920 रे मेक्सिकन रिवोल्यूशन अंत है एंड ओब्रेग कमिंग टू पावर कारांजा पुणी हत्या हो गले पुणी जनरल ओब्रेगो मिलिटरी जड़े सी शासन कले मेक्सिको रे सो देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन द मेक्सिकन रिवोल्यूशन as I explained there was presidential government then constitutional government then military government etc तापर आसला बोलिवियन रिवोल्यूशन बोलिविया से गोटे छोटिया लाटिन अमेरिका राष्ट्र 1952 1964 जितेबाला अर्थनैतिक मांदावस्था देखिए माने शासन ने थिले बोलिविया अर्थनैतिक मांदावस्था दे गला एवं लोक माने मुद्रास्फीति बेकारी दारिद्र एटा बोलिवियन ये रे इकोनॉमी रे देखा देला जोर रे वार मध्य आरंभ होगा सेठी चाको रीजन जोटा पाराग्वे रे the large part of the population peasants by local people they had social dissatisfaction सामाजिक असंतोष हला एवं ताकू बेस करिकी आसिला नेशनल रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन 52 ये जो मिडिल क्लास राइट विंग रूलर्स एमन ऑर्गेनाइज द रिवोल्ट अगेंस्ट द सरकार विरुद्ध माने विप्लव आरंभ कर देले विद्रोह आरंभ कर देले ये जो 5 एटेंसु राष्ट्रपति थे 1952 रे तो सार्वजनिक भोट व्यवस्था आसिला लिटरेसी नथिला प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट नथिला भोटर माने भोट देले ई गोटे डेमोक्रेसी सेठी प्रतिष्ठा हला बोली को जाय परिवो इन बोलिविया बोलिविया मेन होजी माइनिंग इंडस्ट्री राष्ट्र नियंत्रण रे थिला माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ बोलिविया एवं तापरे एग्रीरियन रिफॉर्म आसिला एग्रीरियन रिफॉर्म लॉ आसिला जो जमी दिया गला भूमिहीन मानकु बा चासी मानकु परवर्ती पर्याय जो माइनर मानकर माने खणी मालिक मानकर गोटे मेजर रोल दे आर वेरी पॉलिटिकली पावरफुल दे कंट्रोल द एंटायर पॉलिटिक्स सो से माने ट्रेड यूनियन फेडरेशन कले जो थे परिवर्तन दाबी कले से चासी माने जोग देले एवं एमएनआर जोटा मूवमेंट थिला आंदोलन थिला से माने चासी मानकु सांगरे नै गले तो 59 56 रु 60 साइल्स जुआजो सी राष्ट्रपति हे गले सी अमेरिकार समर्थक हो गले एवं आईएमएफ प्रोग्राम तो कार्यकारी कले सो देयर इज अप एंड डाउन इन बोलिविया एंड समहाउ देयर वाज काउंटर रिवोल्यूशन बोलिवियन रिवोल्यूशन वाज नॉट ए ग्रेट सक्सेसफुल रिवोल्यूशन एवं एमएनआर रिवोल्यूशन टा फेल करिया किंतु ए सबटु सक्सेसफुल रिवोल्यूशन लैटिन अमेरिकन कंट्री रे you will see the successful revolution of Cuba. So Cuba became a communist revolution and had a unique phenomena. Fidel Castro, Che Guevara, they opposed the military regime of Batista. Batista जी सामरिक शासक थे तांको विरुद्ध रे फिडेल कास्ट्रो जोरदार आंदोलन कले सी गोटे लॉयर थे एवं कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी द्वारा इंस्पायर्ड थे सी कहले लैंड रिफॉर्म हम एवं जमी बंटा जीव कम्युनिज्म प्रतिष्ठा हम तो से मीन्स ऑफ प्रोडक्शन 60 बेलू को स्टेट पाखरे थिला तो ये माने से स्लोगान दे कि जो अमेरिका ठू छड़े आनिबा एटा नै कि गले तो इटा गोटे कम्युनिज्म नेसेसिटेड प्रेजेंस ऑफ बोथ डिसेंबर 61 रे रिवोल्यूशनरी पार्टी हला पार्टी कांग्रेस हला एवं क्षमता को आसिले टिल नाउ क्यूबा इज ए कम्युनिस्ट कंट्री टिल नाउ सो कम्युनिस्ट पार्टी प्लेड ए वाइटल रोल अंडर द लीडरशिप ऑफ फिडेल कास्ट्रो नांती ची गुएवारा थे ची गुएवा पळे आसले हत्या करागला किंतु से गोटे कम्युनिस्ट स्टेट है एपर्त कंटिन्यू करुच्ची दैट इज द ओनली सक्सेसफुल रिवोल्यूशन इन लैटिन अमेरिका व्हिच इज कंटिन्यूइंग नाउ तापरे निकारागुआन रिवोल्यूशन हला तो एथिरे समोजा गार्सिया ये गोटे मेजर लीडर इमर्ज करिए यांकु निकारागुआ रे अमेरिका तांको विरोध कला समर्थन कला नै अमेरिका रे इंटरेस्ट थिला एडे फिडेल कास्ट्रो मध्ये जॉइन कले ये जो सैंडिनिस्टा नेशनल लिबरेशन फ्रंट गरिलाज से माने तांकर कार्यक्रम बढ़ाई देले एवं कार्लोस जे थे फोनेका अमांडर 78 रे तांकर बिजनेस इंटरेस्ट तांकर पॉलिटिकल इंटरेस्ट मर्ज कर गला तो 79 बेलू को सैंडिनिस्टा एस्टाब्लिश्ड नेशनल पैट्रियोटिक फ्रंट ये गोटे जातीय गणतांत्रिक मेंट प्रतिष्ठा कले
ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ଏଇ ଯୋଉ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ 79 ରେ ଏମାନେ ମାନାଗୁଆ କୁ ଦଖଲ କରିଗଲେ। ତାପରେ ଯୋଉ ପାରିବାରିକ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଥିଲା ତାକୁ ଅନ୍ତ କଲେ। ତାପରେ 5 ଜଣିଆ ଜୁନ୍ତା ମିଲିଟାରୀ ଜୁନ୍ତା ସେ 5 ଜଣଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବା ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିକାରାଗୁଆନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କଲେ। ସୋ ଇଏ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥିଲା ନିକାରାଗୁଆ, $6 ବିଲିୟନ ଲୋନ୍ ଥିଲା ଆମେରିକା ପାଖରୁ। ତ ଏଥିରେ ସୁଯୋଗ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ବିଗେଷ୍ଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଏବଂ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇମିଡିଏଟ୍ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାଜ ଦ ରିକନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଅଫ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ ଇକୋନୋମି। ଜାତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିକି କେମିତି ବଦଳେଇବେ ବା ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ଏଇ ବିପ୍ଳବ ପରେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିକାରାଗୁଆ ରିମେଣ୍ଡ ଏ ପୁଅର କଣ୍ଟ୍ରି। So if you compare all the revolutions in Latin America, they will find some common points, then find some uncommon points or dissimilarities. कौन कॉमन पॉइंट रिवोल्यूशन में देखले, गोटे है पावर ट्रांसफर। द ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवोल्यूशन इन ऑल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इज पावर ट्रांसफर, क्षमता हस्तांतर। जो माने क्षमता थिले ताको हटे दी के अन्य माने क्षमता को आसीबे, इन टर्म्स ऑफ क्लास, इन टर्म्स ऑफ ग्रुप्स, इन टर्म्स ऑफ क्लास कोलिशन। तो जो मेंटो माने जो शासक गोष्ठी कोटी एकछत्रवादी, कोटी जमींदार, कोटी शिल्पपति, कोटी पूंजीपति, तांकु बदली की कोटी गण सामुख्य माने श्रमिक श्रेणी, चाषी श्रेणी, अर्बन मिडिल क्लास, मध्यवित्त एमाने क्षमता को आसीबे। क्षमता परिवर्तन है सबू लैटिन अमेरिकन रिवोल्यूशन मूल लक्ष्य। सेकेंड है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, संबल बंटन हम। संबल जमी लैंड रिफॉर्म, जमी अच्छी मात्र 7-8% लोक पाखे 80% जमी, ताकू बदल समस्त को दि जाव। श्रेणी ढांचा जोटा सक्सेसफुल अच्छा भांगी दि जाव एवं आरिस्टोक्रासी, चर्च यांकर क्षमता को हटई दि जाव। ये होला मेजर ये। तापर संबल पुनर्बंटन हम, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, संविधान तैयारी हम, संवैधानिक अनुष्ठान तैयारी हम। जमीती कि क्यूबार है कम्युनिस्ट पार्टी पावर को आसला, कम्युनिस्ट पार्टी वन पार्टी रूल है, एवं निकारागुआ से भाया चेंज है, मेक्सिको रे संविधान है, ब्राजिल रे संविधान है। सो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर डेमोक्रेसी इमर्ज्ड एज अनदर गोल ऑफ रिवोल्यूशन। तापर रिकंस्ट्रक्शन, पुनर्गठन हम, अर्थनीतिर पुनर्गठन हम, सामाजिक पुनर्गठन हम, राजनैतिक पुनर्गठन हम, नुआ पार्टी हेबे, नुआ श्रेणी हेबे। ये अनदर लक्ष्य है। That mainly conflict है अमेरिकन इंटरेस्ट सहित। देखो अमेरिका has a vested interest in entire Latin America। लाटिन अमेरिका रे अमेरिकार न्यस्त स्वार्थ अच्छी, तैल खनि खादान सबू कंट्रोल से रखी। तेणु जो मैंने नुआ सरकार कर शासन को आस चैलेंज कर अमेरिका एलाउ करना, समस्त क्या हटे दूची, क्या मारिदेवार अभियोग होची। किंतु वन सक्सेसफुल कंट्री इज क्यूबा। क्यूबार केवल कम्युनिस्ट शासन अच्छी जो अमेरिका एपर्यंत पारि ना। 60 रे क्यूबान मेजिकल कौन क्यूबान मिजाइल क्राइसिस होता, परमाणु युद्ध होता, रशिया ताको सपोर्ट कला बोले ही पारला नहीं, बालांस हो गला। तेणु क्यूबा इज ऑलवेज अपोज्ड बाय अमेरिका। अमेरिका क्यूबा ऊपर एम्बार्गो बा अर्थनैतिक बासंद आज पर्यंत रखी। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ अमेरिकन रिवोल्यूशंस दैट वी कैन से। So this is all about the changes in Latin America, the polity, the society, and all the factors involved. So how रहिला दिनटा चैप्टर हम तो कवर करि परियो नै, but we will finish because मोर problem टा is कोन I have severe toothache ता सत्ते, because there is a class, so I have to take, and you people 2-3 people why are you continue question टा लिख दियो हला लिखोटी। Are you writing? हाँ सर। फर्स्ट चैप्टर जोटा आज पढ़ेली स्टेट एंड मार्केट तारी ऊपर लिख। हाउ मार्केट बिकेम डोमिनेंट अंडर न्यूलिबरलिज्म इन लैटिन अमेरिका। हाउ मार्केट बिकेम डोमिनेंट अंडर न्यूलिबरलिज्म इन लैटिन अमेरिका। सर आउ थरे। हाउ मार्केट बिकेम डोमिनेंट how market became dominant in Latin America under neoliberalism.
हाँ सर आगे मोनालिसा तुम साउंड होची कोन तुम कोठे छे What are the negative impacts of market on Latin American economy and society? What are the negative impacts of the market sir of the market on Latin American society and economy? On Latin American society and economy. sir Write about about Peron, Peron of Argentina. Peron of Argentina. And found Vargas, Vargas, Vargas of Brazil. sir Brazil Write about Latin American populist movements. Write about, out question, Latin about American populist movements. Latin American populist movement. Salla. तापर लिखो what is the traditional colonial agrarian structure in Latin America? What is the colonial agrarian land structure in Latin America? Discuss the regions of peasant revolution in Latin America. Discuss the regions of peasant revolutions in Latin America. sir Discuss the political role of church in Latin America. Political role of church Latin America ना sir Political role of church in Latin America. मोनालिसा तुम कोउट अछि एतोर पार्टी सुज मार्केट रे ना कोन सर गोटे शॉप रे जॉब करूची तो सेठी अछि वेरी गुड तो discuss the theory of secularization of church. Discuss the theory of secularization of church in Latin America. of sir of Church in Latin America. America Discuss the revolution in Cuba. Discuss the revolution in Mexico. सर आउतरे Discuss the revolution in Cuba. तापरे discuss the revolution in Mexico.
What are the regions of revolution in Latin America? What are the regions of revolution in Latin America? What are the Regions of revolution in Latin America. reason? So Latin America. ହେଇଗଲା sir. Now you can keep my number. ତମର ତ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଗ୍ରୁପ କରିବ କ'ଣ ସେ ଯେମିତି ଆର ଇଏରେ ଗ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କର ଗ୍ରୁପ କ'ଣ କରିବ? So if you can have any doubt. So 89174 89174 91074 910 91074. So this is all about today's class, and I hope I have completed this Latin American politics and society, whatever possible within these 4 classes. Then I have also class after 9 तारिख ରୁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆରମ୍ଭ ସେଟା ତମର? ନାଇଁ ସାର୍ ସେଟା ଆମର ନାହିଁ ଆମର 8 ଯାକେ ମୋର ଅଛି ଆଉ କାହାର ଯଦି ଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି ସାର୍। ଆଚ୍ଛା ଆଜି ହେଲା କେତେ ତାରିଖ? ଆଜି ତ 1। ନାଇଁ ସାର୍ ଆଜି 3 ନା। କୋଉ 1 କଥା କହୁ? କौन सर मैं एक्चुअली बुझी पार मे 1 तारिख। अच्छा मे 1 तारिख कहउछन्ते क्लास नहीं अछि नहीं जोटा मोर 9 तारिख अप्रैल 9 रे अछि दैट इज Canada politics and society in Canada, Canadian political system will be studying. So सेटा मध्ये है आउ क्लास अछि 9 10 11 13 की I don't know exactly. Okay. अच्छा Anyway, thank you for remaining till the end of the class, you too, Monalisa and Pankajini. Okay. Thank you, sir. थैंक यू सर।